uh, cash is concerned, I believe you must have done a lot of practice. So today onwards, we are going to focus more. Thank you, Rakesh. Thank you very much. I believe in this particular topic, particularly this guy has, lot of, uh, insight, and he really works very hard. Since last 2 3 sessions, I'm finding his contribution, his way of handling questions are really admirable, and I really um, you know going to appreciate this approach. Other students should also follow the same. You should also be in the same path what Rakesh is doing. Let's continue with that. I believe these questions we did. Am I right? Whether it is single flow or multiple flow. I told you there are two ways. If the multiple flow of cash is in different, denomination, if it is single kind of flow, then you can utilize the formula of FVIFA, and you can get the same answer, provided the flow of cash is constant. If it is not constant, then whatever the traditional method we were following, same need to follow, and accordingly you will get the answer. Okay. So today we'll be taking care. This was our page 19, illustration 10. So it was all compounding. If it will be the question of discounting, what will be done? That means we are going to talk about present value of future money. I think basics has been already discussed during previous session. Okay. Here you have to compound the thing. Here you have to discount the thing. And we had verified also whatever the present value we have invested, and after some year whatever the future value we got, and there whatever the future value we had, again we have calculated their present value. That homework I have given it to you, and you stated, sir, we got the same answer. Like here, if the future value is 4014, so here the present value for the same we got as 3000. Likewise, here 42,000 became 13,000. So we certified that this formula of discounting is also very much correct, and it is applicable. Tenth we did. What about 11th and 12th? Have you done these things? If annuity flow is 5,000 for 5 years, what value it will going to give us after 5 years with the rate of interest 8%? Have you done this question? How many of you have done it? नो सर, नहीं किया है. Karo, do it now. Hello, sir.
हेलो सर। बोलो बेटा। सर मुझे आंसर आया है 29,335। देखते हैं अदर्स का क्या आंसर है। ओके सर। Other student, have you got your answers? See, for your reference, I am putting these things in front of you. This will help you. कुछ नहीं करना है. This you need to change. This you will have to take it at 8%. And this also you have to change. That you need to consider 5,000. Or rather, this kind of things also you can do it. And that will be the best way. One is getting 25, another is getting 31. नो सर, मुझे आ रहा है 29,335। बेटा 2,000 का फर्क नहीं आना चाहिए. 2,000 का फर्क इज वास्ट डिफरेंस. देखें 29,000 यस 29 वाला 183. मतलब वो चलेगा. फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी कैसे कंप्यूट कर सकते हैं आपको पता है? आपने कैलसी मैंने में ना टेबल यूज किया. नहीं वो मत करो, वो एग्जाम में नहीं मिलेगा. दैट हैबिट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग हैबिट. आपने क्या करना है, इसको मेमोरी में डालते जाना है. डिवाइड बाय 100 मेमोरी प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी एक एक्स्ट्रा चला गया, देन मेमोरी प्लस,
इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस, मेमोरी प्लस। हो गया 5 साल। आई डोंट नो, आप देखो शायद। फिर एमआरसी करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वही वाली आएगा, वैल्यू आएगा। दैट सर इज एक बार वापस बोलो ना। देखो क्या करने का ना, मेमोरी में डालते जाने का, कैलकुलेटर पे। हाँ सर। तो 8 था, 8% डिवाइड बाय 100, दिस इज माय फर्स्ट ईयर, it will go to memory plus, equal to memory plus, equal to memory plus, 3 हो गया ना, equal to memory plus 4 memory plus, MRC करेंगे तो सॉरी MRC को 3। तुम्हारे कैलकुलेटर में MRC करके एक फंक्शन रहेगा, वो करो, हाँ सर है। आ जाएगा वैल्यू। फर्स्ट ईयर memory plus equal to memory plus मेरे को लगता है एक मैंने एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ पे MR जो है हाँ ना, सर एक लिया। एक कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आएगा 5.87 समथिंग यू विल गेट। दिस इज हाउ यू कैन यूज फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। टेबल नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में देखने के लिए फॉर श्योर। डोंट डिपेंडेंट ऑन टेबल, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके, चलो और देखते हैं कि और कोई क्वेश्चन है क्या ऐसा ही। Interest calculator is not there in your basics only. Now or in fact there will be many question on your exercise. सर आ गया मुझे। आएगा आएगा, फंडामेंटली समझना जरूरी है। तो नाउ वी विल गो विथ डिस्काउंटिंग वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो, जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ था अर्लियर। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग वैल्यू, उसमें सिर्फ रिवर्स जाना है, उसमें 100 डिवाइड बाय 108 करनी है ना। और वो फ्यूचर वैल्यू थी, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू करनी है। अब देखो इन्होंने 500 का 4 ईयर तक डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है तो वैल्यू ढूंढा है। अब बताओ, हाँ चलो यहाँ भी वो फंडा आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 वैसा ही आएगा। आपने क्या करना है इसको, और इसमें 100 डिवाइड बाय 108 होगा ना। 100 डिवाइड बाय 110, यहाँ पे 10% है। हाँ हाँ वही। हाँ, तो इसमें 100 डिवाइड बाय 110 होगा। ठीक है, वो मेमोरी प्लस में चला जाएगा। इक्वल टू मेमोरी प्लस 2, इक्वल टू मेमोरी प्लस 3, इक्वल टू मेमोरी प्लस 4, MRC 3.61169, वही है ना 3.170। आ गया, समझ में आया अभी तुमको ये कैसे आता है? हाँ सर। बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है 500 से, you get the answer. Do it. Get me the value. $1585 sir. Yes, very correct. अब ये वाला बताओ। एन्यूटी मतलब कांस्टेंट फ्लो, इसलिए उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू
interest factor for annuity? Get me the answer of question number 15. Two five nine three 5.69. Others, we started getting answer. Others, please participate and get me your answer. सर मेरा 500 का डिफरेंस आ रहा है।
एब्सोल्युटली राइट। सर मेरा 27,232 हाँ आ रहा चलेगा, है, थोड़ा थोड़ा बहुत 230 आ रहा है, सॉरी। चलेगा। वो 3 डिजिट और 4 डिजिट को अगर आप राउंड ऑफ करोगे ना बेटा, वो फर्क आ जाता है। ओके सर। ठीक है ना, उसमें कोई फर्क, उसमें कोई टेंशन नहीं लेने का। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू भी आने लगा। ठीक है, चाहे वो सिंगल कैश फ्लो हो या मल्टीपल कैश फ्लो हो। क्वेश्चन नंबर 18 करो। If the rate is 10%, what will be the value? Question number 18 करो खुद से। With 10% rate of interest. Ten six five one, sir. 10,651. I'm very happy many of you have started participating. थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होगा, no problem. थोड़ा आगे पीछे आंसर होगा, then also no problem. You keep practicing. अब घर में प्रैक्टिस नहीं। 10651। हाँ दिख रहा है ना, किसी को 53 आ रहा है, 51 हो रहा है, चलेगा। 10,651 चलेगा ना, चलेगा, दौड़ेगा मेरे लिए। ये सारा बेस बनेगा whenever there will be a capital budgeting। आपको बताता हूँ एनपीवी और वो सब ढूंढने का। ठीक है, तो इसी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे ये सारी कैपिटल बजटिंग की। लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, दैट वी विल सी लेटर ऑन। अभी सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं हम लोग। सर हाँ बोलो बेटा।
सर वो डिस्काउंटिंग फैक्टर का वो कैलसी पे मेरा नहीं आ रहा है, इसके लिए मेरा 14 और वो सम नहीं हुआ। क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? अरे वो डिस्काउंटिंग फैक्टर ना वो कैलसी पे नहीं आ रहा है। कैलसी पे ये लो, बहुत सिंपल है, लेटेस्ट प्रैक्टिस। अभी ये कौन सर सा क्वेश्चन क्वेश्चन? नंबर 15 कीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 15 का मुझे भी प्रॉब्लम आ रहा है। एक्चुअली आंसर नहीं आ ये अभी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे आ गए, तुम लोग ये फर्स्ट ईयर हुआ इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 105। मीटिंग अगर खत्म होगा वापस सेम लॉगिन से ऐड करना है आपको, ठीक है? ठीक है सर। दिस इज फर्स्ट ईयर मेमोरी प्लस, सेकेंड ईयर मेमोरी प्लस, थर्ड ईयर मेमोरी प्लस, एमआरसी 3 क्यों आ रहा है भाई? देखा ना सर, प्रॉब्लम आ रहा है। तुम लोग को भी 3 आ रहा है क्या? हाँ सर, मुझे आ रहा है। हाँ, तो मतलब ये इन्होंने 2 ईयर ही लगता है मेरे को कंसीडर किया है। ये जो है ना, ये 2 ईयर ही कंसीडर किया, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग दैट आंसर। लेट मी वेरीफाई वंस अगेन। 100 divided by 105 first year memory plus equal to memory plus नहीं, सर 3 ईयर किया ना तो मुझे 2.5935 आ रहा है। divide by 105 equal to memory plus 1 2 3। हाँ, यही आ रहा है ना, 2.723 आ रहा है ना। देखो तो, how much you are getting? Are you getting this value? नहीं ना सर, मुझे आ रहा है ना, यहाँ 2.5935 पे ही आ भी रहा है। चिंतन परमार वगैरह सबका यही वैल्यू आ रहा है, राकेश का वही वैल्यू आ रहा है, मेरा भी वही वैल्यू आ रहा सर है। नहीं सर, मेरा रोशना का सेम आ रहा है। 27230 आ रहा है। ये आना चाहिए 2.723। यस, आप चेक करो वापस, देखो वापस फॉर यू अगेन आई एम रिवाइजिंग, नो वरीज। 100 डिवाइड बाय 105 फर्स्ट ईयर मेमोरी प्लस, सेकेंड ईयर मेमोरी प्लस, थर्ड ईयर मेमोरी प्लस, एमआरसी, यही आ रहा है। और आप इवन आपके टेबल पे देखोगे तो भी वही आंसर आएगा, और 0.5 करके 3 बार जो 0.99 करके ऐड करोगे तो भी वही वैल्यू आएगा, एज वी डिड हियर ऑल्सो, ठीक है ना? चलो, ये कंफ्यूजन के लिए ना, हम कितना था, कांस्टेंट कैश फ्लो ही था ना, 10,000 था, 5% था। चलो वो करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 15। ओके, just
मीट आफ्टर द ब्रेक एंड देन वी विल कंटिन्यू, मतलब रीजॉइन कीजिए, हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब मगजमारी दूर हो जाएगा। फाइव % ही पूछ रहे हो।